میری بھی سیکنڈ میرج ہے اور ان کی میرے ساتھ بھی سیکنڈ میرج ہے، اور میرے فرسٹ میرج سے 2 بچے ہیں، اور اب ماشاءاللہ 2 تو 4 بچے، اور ان کے ماشاءاللہ 4 بچے، اور اب 2 ہمارے تو 6 بچے، اور اب ملا کے ہم سب کے میرے بھی 8 اور ان کے بھی 8، وہ بچے بھی میرے بچے، میرے بچے ان کے بچے۔ کیا بات ہے جی، یہ بچوں کا حساب کتاب تھوڑا لمبا ہو گیا ہے سر۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کو قائل کرنا یا بچوں کو قائل کرنا یا پھر ان کو آپ نے کس طرح قائل کیا، وہ ذرا تھوڑا سا بتا دیں۔ نہیں، قائل کرنے پہ اگر جائیں تو کوئی بھی نہیں قائل ہوگا۔ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ جہاد ہی ہے، سمجھے۔ دیکھیں، یہ سامنے بیٹھنے کا اثر ہے یا دل سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہ سامنے کوئی میں اس سے کوئی میں ڈر کے بتا رہا ہوں یا پھر نہیں، میں جٹ ہوں، چودھری ہوں، الحمدللہ ڈرتا نہیں ہوں کسی سے بھی۔ نہیں، لیکن دیکھیں جو پہلے تو آئی لو یو سو مچ نعیم صاحب، مائی ڈیئر ہسبینڈ، یہ واقعی ان کی آپ خامی اور خوبی پوچھیں۔ جو ہمارا پہلا گفٹ تھا شادی کے بعد، گفٹ تھا یا جو ہم دونوں کا ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی، اور ہم دونوں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ حج کا فریضہ ادا کرنے گئے تھے الحمدللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے مرد کے حقوق میں یہ رکھا ہے تو پھر وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، بلکہ آپ مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اگر تیسری شادی کریں گے تو کیا ہوگا۔ یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چلیں یہ بتا دیں۔ دیکھیں جی، اگر کوئی ایسا وقت آ ہی گیا کہ واقعی تیسری شادی کرنی ہے تو پھر اب یہ ریکارڈ ہو جائے گی بات، تو پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے کس خاتون کا ہاتھ ہے؟ دونوں کا ہی ہے۔ السلام علیکم جی، میرا نام علی شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب یورو ٹی وی۔ ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی بڑی انفارمیٹیو ہوگی۔ گریس میں ہم موجود ہیں، ایتھن شہر میں، جو کہ کیپٹل ہے گریس کا، جسے یونان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک بہت خوبصورت کپل آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جی نعیم صاحب جو گزشتہ 22 سال سے گریس میں رہ رہے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ہیں دیبا نعیم صاحبہ، جو کہ ان کی مسز ہیں اور یہ یہیں پیدا ہوئی ہیں۔ ان کا ایکسپیرینس بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یقیناً اس میں بہت ساری انفارمیٹیو چیزیں بھی ہوں گی جو آپ کو سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملیں گی۔ سو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے؟ جی، پاکستان آزاد کشمیر سے میرا تعلق ہے، اور سب سے پہلے جو ہے نا آپ کا جو پنجاب ٹی وی ہے، یورو ٹی وی، یہ ماشاءاللہ آپ کا جو کام ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ پورے یورپ سے آپ کر رہے ہیں، جو کوریج کر رہے ہیں، بہت لوگوں کو جو ہے نا موٹیویشن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا پروگرام ہے۔ اچھا، کشمیر سے آئے 22 سال ہو گئے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے سر، 22 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ جی، میں تو سب سے پہلے یہاں آیا مزدوری کی ہے، ٹھیک، ایک عربک شاپ تھی اس پہ مزدوری کی، میں سعودی عرب سے آیا تھا۔ ٹھیک، تو پھر آ کے ایک میرے استاد محترم ہیں مٹھو صاحب ہیں، پھر ریسٹورنٹ لائن میں آ گیا جو ہے نا، 18 سال ہو گئے ہوٹلنگ لائن میں۔ امونیا میں ہمارے ریسٹورنٹ ہے، پاک تکا اور وہ ٹکا ٹک چسکا، یہ ہمارے ریسٹورنٹ ہے جو ہے نا۔ کیا بات ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا انڈین ریسٹورنٹ بھی بنائے، بالی ووڈ ریسٹورنٹ تھا ہمارا، جزیروں میں بنائے ہم نے الحمدللہ۔ پھر کامیاب بزنس مین ہے آپ، بس کیا بات ہے۔ ابھی تو سیکھ رہے ہیں ہم۔ نہیں سر، ابھی 22 سال ہو گئے، آپ سیکھ لیا آپ نے جو سیکھنا تھا۔ یہ بتا دیں کہ یہ ماشاءاللہ مسز ہے آپ کی، ٹھیک ہے، کتنی دیر ہو گئی ہے شادی؟ ماشاءاللہ تو میں نے کہہ دیا نا پہلے ہی، وہ مدنی صاحب کی طرح ماشاءاللہ۔ ہاں جی، ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں کتنی دیر ہوگی شادی کو؟ جی مجھے 9 سال کا عرصہ ہو گیا ان سے شادی کو۔ ماشاءاللہ، صحیح ہے۔ شادی پہ میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ان کا بھی تعارف آپ کو کرواتا چلوں کہ یہ بھی ماشاءاللہ بہت سارے شعبہ جات میں انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے کہ یہ پاکستان کون سا علاقہ ہے ان کا، اور پھر ان کی یہاں کی جو جرنی ہے سٹارٹنگ، وہ تھوڑا سا آپ کو بتا کے پھر شادی کی طرف ہم آتے ہیں۔ میم یہ بتائیں کہ پاکستان کون سا علاقہ ہے آپ کا؟ میں راول پنڈی اسلام آباد سے پاکستان۔ آپ نے ماشاءاللہ صحافت بھی کی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کن کن شعبہ جات میں آپ نے یہاں پہ کام کیا ہے؟ جی میں کافی عرصہ ہوا ہے مجھے یہاں پہ کام کرتے ہوئے۔ جب میں 16 سال کی تھی تو میں نے یہاں پہ کام سٹارٹ کیا تھا۔ اس وقت کوئی خواتین کا ایسا کانسیپٹ نہیں تھا، کسی بھی خاتون کا کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اس میڈیا میں آئے گی یا اس شعبے میں آئے گی۔ تو میں ایز اے نیوز کاسٹر میں نے اپنے کام کا جو ہے یہاں پہ آغاز کیا تھا، حتیٰ کہ اب حالات وہ نہیں رہے، اب حالات بہت زیادہ یہاں پہ ایسے ہو گئے ہیں، جیسے کہ ہم تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جو یہاں پہ میڈیا کا کانسیپٹ تھا اب وہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب خواتین جو ہے
जिस वक्त मैंने काम शुरू किया मेरे बाद ख़वातीन आई, मैंने एज अ एंकर, एज अ न्यूज़ कास्टर, एज अ एक्ट्रेस भी, और जो हमारे जितने भी म्यूज़िकल शोज़ होते थे, फैमिलीज़ के गेट टुगेदर्स प्रोग्राम्स होते थे, पार्टीज़ होती थी, उनको मैं होस्ट करती थी हमेशा। तो उस वक्त ख़वातीन भी बहुत साथ थी, और मेरे बाद ख़वातीन भी आई इस शोबे में। ठीक। वो क्या कहते हैं कि एक शेर याद आ गया, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वही बात है, कारवां बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारी ख़वातीन ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेना शुरू कर दिया था। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हालात ऐसे हो गए कि हमें फिर अब थोड़ा सा आप भी देख रहे हैं कि मीडिया के उस से हम काफ़ी दूर हो गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह आप जैसे लोग माशाल्लाह सब, मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि अली भाई आपकी वीडियोस और आपका जो वेब चैनल है माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, वो हम देखते रहते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जैसे लोग जो कि बहुत ही पुख्तगी के साथ और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ अपनी कम्युनिटी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक दफ़ा फिर हम उन हालात पे जाएंगे, एक दफ़ा फिर हम इंशाल्लाह वो माहौल पैदा करेंगे। आप जैसे लोग अगर और भी मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर इनकलाब आएगा मीडिया में। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे अल्फाज मेरे बारे में कहा। अच्छा सर ये बता दें, माशाल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं जी। 6 बच्चे हैं। जी जी सही है। और ये आप बता रहे थे आपकी सेकंड मिसेज है? जी जी। माशाल्लाह। ठीक। और आपके कितने बच्चे हैं जी? जी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं। आप दोनों के 10 बच्चे होगा टोटल, माशाल्लाह। अच्छा सर अब ये बताएं, ईमानदारी से कहा यह जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे खातून का हाथ होता है, तो आपके पीछे किस खातून का हाथ है? दोनों का ही है। दोनों का ही है। हाँ अच्छा मैं आपको जवाब दूँ, ठीक। इन्होंने तो वो ना डिप्लोमेटिक सा जवाब दे दिया है, क्योंकि जिस हस्बैंड की 2 वाइफ्स होती हैं उन्होंने डिप्लोमेटिक आंसर करना होता है। बेशक जी वो भी उनकी फ़र्स्ट वाइफ है, उनकी मोहब्बत उनकी सपोर्ट भी हमेशा इनके साथ है और मेरी भी। असल में ये मेरी ज़िंदगी, मैं चूँकि अभी अपनी बात कर रही हूँ, तो ये जब मेरी लाइफ में आए थे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 साल हुए हमारी शादी को, तो माशाल्लाह एक कामयाब ही मर्द थे वो, और एक कामयाब माशाल्लाह आज भी वो कामयाब है। लेकिन मेरी लाइफ में आने से पहले मैं आपके सवाल का ये चाहूँगी कि जवाब दूँ कि एक माँ जो होती है ना, सबसे पहला राइट उसका होता है। एक माँ की दुआएं उसका राइट, कि वो अपने बच्चों को इस तरह तरबियत करती है, इतनी दुआएं करती है कि वो एक कामयाब मर्द जो है वो बनता है। उसके बाद वाइफ जो है वो तो ऑलवेज़ उसकी बेटी, उसकी बीवी, एक मर्द की, वो हमेशा साथ ही होते हैं। अच्छा ये बता दें, शेख रशीद साहब की बात आपने उस पर मोहर लगा दी है। वो कहते हैं कि औरत सेलेक्ट ही कामयाब मर्द को करती है, तो आपने भी कुछ ऐसे ही नहीं किया? वैसे ही आपने कहा तो सही है। और देखिए जी, औरत सेलेक्ट ये कामयाब मर्द को इसलिए करती है, देखें औरत सिर्फ औरत नहीं, अगर फिर मैं बात थोड़ी सी, आप बात करते हैं दूसरी तरफ और मैं उसे ले जाती हूँ दूसरी तरफ, कि जब वालिदैन अपनी बेटी का रिश्ता करते हैं तो वो पहले ये देखते हैं कि जी देखो एक आदमी जो है वो अच्छा लड़का हो, वो काम करता हो। और पाकिस्तान में तो पता है, हम ग्रीस वालों के लिए एक वो बनी हुई है एक छोटी सी वो कहावत सी बनी हुई है कि मुंडे दे अंसी में लग दे जाए कि कोई नहीं लग दे। तो वो हाल है, तो वो नहीं, वो तो एक वालिदैन जो है, सारे वालिदैन की यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों के लिए अच्छा लड़का ढूंढें जो कि काम भी करता हो, कामयाब हो। और इसी तरह चलें, ये तरबियत आपके वालिदैन की थी कि मैंने कामयाब मर्द जो है मैं बताता हूँ यहाँ पे ना, वहाँ पे जो है ना लड़की के लिए वो देखते हैं ना, यहाँ लड़के ने खुद देखा है लड़की को। अच्छा जी, क्या बात है। अल्लाह ताला आपको हमेशा अच्छा मुझे बताएं, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है कि आप एक ऐसे मर्द का इंतखाब करें जो कि कामयाब हो और एक अच्छा इंसान हो, चले कामयाबी भी हो लेकिन अच्छी और खूबसूरत भी हो, खूबसूरत भी हो और खूबसूरत भी हो, एक वेल पर्सन। नहीं नहीं, आप तारीफ के काबिल हैं। हम जब बहुत खूबसूरत है, ये बहुत प्यारे इंसान है। और देखिए मैं इनकी वैसे तो तारीफ़ करती रहती हूँ, हस्बैंड वाइफ है, लेकिन आज आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा हमें मज़ीद मौका मिल गया है, तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारे इंसान है, इनका बहुत प्यारा दिल है। और बहुत, मैं ये इनके सामने की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत और नेक सीरत बंदे हैं ये। क्या बात है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, किचन में हेल्प करवाते हैं आपकी? ज़रा उसमें थोड़ी सी डंडी मारते हैं। अव्वल तो मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छे हैं, मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं कि वो हेल्प करवाएं। लेकिन अभी कभी कोई बहुत ही बुरा वक्त आ जाता है तो फिर वो आ जाते हैं एकदम से, उनकी फ़्लाइट उतरती है, तो फिर किचन का विजिट होता है इनका। ठीक। सर क्या क्या कभी याद हो मिसिस के लिए कुछ आपने अपने हाथों से बना के खिलाया हो? कभी मेरा दिल करता है ना, जब मेरा अपना दिल करता है, उन्होंने तो कभी फोर्स नहीं किया, ना कभी ऐसी नौबत आई है, लेकिन जब मेरा दिल करता है यार आज मैं बनाता हूँ, तो मैं
कीमा बना लेता हूँ और कढ़ाई गोश्त वगैरह बना माशाल्लाह, लेता ये आपकी पहली मिसेज भी देख रही होंगी। हूँ जी। उनको तो कभी खिलाया ही नहीं है, सीधी जो बताऊँ आपको। चले कोई बात नहीं। इसलिए नहीं, वो अपनी खुशी से बनाते हैं, कभी कभी उनका दिल करता है, लेकिन मैं बताऊँ सच्ची में उनका वो शायद मेरे टेस्ट से उकता जाते होंगे, कहते होंगे बेगम हर वक्त तुम्हारे हाथ का खाता हूँ, आज मैं खुद अपने हाथ से बना के खिलाता हूँ। बच्चे भी कभी जो है ना, बच्चे कहते हैं अंकल आज आपके हाथ का खाना है, ये बाबा आपके हाथ का खाना है जो है ना, सही तो है। मैंने कहा चलो आज कढ़ाई गोश्त बनाते हैं। बस चले, कभी साल में, कभी 9 साल में कोई 5 दफ़ा हुआ होगा। चले, हमारी भाभी जो पाकिस्तान में वो देख रही होंगी, वो कमेंट करेंगी नीचे, हैं क्या बात है, क्या बात है। औरत मार्च भी आ रहा है पाकिस्तान में, थोड़े दिन तक आ जाएगा। आप यहाँ पे पैदा हुई हैं, आप पाकिस्तान कल्चर को भी समझती हैं, यहाँ के कल्चर को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी ख़वातीन को, और क्या समझती हैं आपके जो औरत को आज़ादी इस्लाम ने दी है वो नाकाफ़ी है? जी अली भाई, बहुत अच्छा ये आपने सवाल किया। और जैसे कि मैं बिंगा पाकिस्तानी और बिंगा मुस्लिम, बेशक मैं यूरोप में रही हूँ, बड़ी हुई हूँ, लेकिन औरत के लिए जितनी इस्लाम ने इजाज़त दी है वो काफ़ी है। वो इसलिए काफ़ी है कि देखें, एक मर्द और औरत के दरमियान इस्लाम ने बहुत खूबसूरत सा एक ना रिश्ता बना के रखा है कि कुछ ऐसे काम हैं जो कि मर्द को मर्द के सुपुर्द है, और कुछ ऐसे ड्यूटीज़ हैं जो कि औरत के सुपुर्द की गई हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर मर्द अपनी ड्यूटीज़ को बखूबी निभा रहा है, और एक औरत अपनी ड्यूटीज़ को जो कि अपने बच्चों की सूरत में, एक अच्छी बीवी की सूरत में, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन बेटी की सूरत में निभा ले, और उसका मर्द उसमें उसका साथ दे, सपोर्ट करे, तो इससे बड़ी खूबसूरती की और कोई बात नहीं। इस्लाम ने पहले ही ये चीज़ें वाज़ह कर दी हैं। तो हम ये आज के दौर में अगर औरतें उसी किरदार में, उसी दायरे में, उसी इस्लाम के व्यू में रहते हुए अगर हम करेंगी, तो मेरे ख्याल से औरतों को उनके हकूक भी मिलेंगे, मर्द भी उनका साथ देंगे। क्या बात है। अगर औरतें उसको हम दूसरे रंग देना शुरू कर देती हैं और दूसरी आज़ादियों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो चाहे मैं यूरोप में रहती हूँ, लेकिन मैं फिर भी इसके खिलाफ हूँ कि औरत के लिए आज़ादी की जो हद इस्लाम ने मुकर्रर कर दी गई है, उसी हद में रह के अगर औरत अपनी आज़ादी का फ़ायदा लेगी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका हस्बैंड, उसका बाप, उसकी सोसाइटी, माशरा, सब लोग उसका साथ देंगे और उस औरत से खुश होंगे, और अल्लाह ताला भी। सर, दूसरी शादी के लिए पहली बीवी को कायल करना या बच्चों को कायल करना, या फिर इनको आपने किस तरह कायल किया, वो ज़रा थोड़ा सा बता दें। नहीं, कायल करने पे अगर जाएं तो कोई भी नहीं कायल होगा। ये वो कहते हैं ना कि जहाद ही है, समझे। जहाद ही है। दूसरी शादी जहाद है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने आपको बताया था कि मेरे माशाल्लाह बच्चे भी हैं, मैं शादीशुदा हूँ? जी जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे बताया था, सारी बात शेयर की थी कि मेरी वाइफ भी हैं और बच्चे भी हैं। और मुझे जो मर्द हजरात दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हैं, क्या उन्हें दूसरी शादी करनी चाहिए? देखिए जी, वहाँ मैं क्या कह सकती हूँ, जहाँ इस्लाम ने इजाज़त दी है, तो मैं जब अल्लाह ताला ने मर्द के हकूक़ में ये रखा है, तो फिर वो मैं कुछ नहीं कह सकती, बल्कि आप मुझे ये कह सकते हैं कि ये अगर तीसरी शादी करेंगे तो क्या होगा। चले, ये क्या बात है, क्या बात है। चले ये बता दें। देखिए जी, अगर कोई ऐसा वक्त आ ही गया कि वाकई तीसरी शादी करनी है, तो फिर अब ये रिकॉर्ड हो जाएगी बात, तो फिर मैं देखूंगी, सोचूंगी। ठीक है जी, मैं कल से जो है ना, मैं फिर कल से शुरू हो जाता हूँ इस मिशन पे। मिशन इस जिहाद के लिए मैं तैयार देखिए, हूँ। आप इस्लाम की ये नफी कर रही हैं। इसलिए मैंने कोई हामी नहीं भरी अभी। नहीं, ये माशाल्लाह देखें ना, आप दूसरी शादी है तो आप इतनी कोऑपरेटिव हैं, तो यकीनन तीसरी के बाद भी आप उम्मीद रखते हैं कि ये कोऑपरेटिव ही होंगी। माशाल्लाह, ये बहुत, मैं फुल उम्मीद हूँ इस पे। जी, असल बात ये कि अगर मैं इनके साथ इसी तरह कोऑपरेटिव चलती रही, इनके हकूक और इनसे प्यार करती रही, तो फिर इनको शायद तीसरी शादी की नौबत ही जरूरत ना आए। ना आए। क्या हम दो ही इनके लिए काफ़ी हो जाए। क्या बात है। सर, पाकिस्तान कितनी देर बाद विजिट करते हैं? मैं तो चला जाता था 6-7 महीने में चला जाता था। इस बार थोड़ा सा पेपर की वजह से थोड़ा सा जो ना, कुछ कोरोना था, उसकी वजह से जो है ना हुआ। अमूमन आप साल में एक दफ़ा ज़रूर चले जाते हैं? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा? 2 दफ़ा। माशाल्लाह, जी, माशाल्लाह, जी। सही है। अच्छा सर, कामयाब ज़िंदगी गुजारने का कुछ तरीका बता दें। बिजनेसमैन तो कामयाब आप हैं ही, शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब करने का कुलिया बता दें। नहीं, इंसान तक ही है खुद जो है ना, उसने जिस तरह देखें, एक दरख्त है ना, जिस तरह उस टेनी को जहाँ तक आपने लेके, जिस तरह गाड़ी पे समझे, गाड़ी पे बैठे हो, जहाँ गाड़ी आपने चलानी, एक्सीडेंट भी कर सकते हैं। नहीं क्या? अल्लाह रहम करे। नहीं जी, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बस मियाँ बीवी का एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे को समझ के चलेंगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। चलें जी, वो तो एंड पे था जी, लेकिन यही है, समझना ज़रूरी है बेशक। अच्छा, एंड पे ये बता दें, बताना ईमानदारी से या नहीं साहब, जी, बोलें। इनकी एक खूबी और एक खामी। हाय। नहीं,
मुझे तो नहीं कोई भी खामी नहीं नज़र आई। अगर खामी होती, सुने, अगर खामी होती 9 साल का हमारा हो गया है, कोई खामी ऐसी मुझे बिल्कुल नहीं। ये सीख लें जो मर्द हजरात हैं शादीशुदा, वो देखें 9 साल में खामी नहीं सामने आई। नहीं देखें, ये सामने बैठने का असर है या दिल से कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कि सामने कोई मैं उससे कोई मैं डर के बता रहा हूँ या फिर नहीं नहीं नहीं, मैं जट हूँ, चौधरी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डरता नहीं हूँ किसी से भी। नहीं, लेकिन देखें जो बात हक सच की है ना, आपने देखें दुनिया भी देख रही है ना, सीधी जो बात है, खामी खुद निकालनी पड़ती है आपको। वैसे निकालना चाहिए तो बोलेंगे क्यों ऐसे है, सीधी बात है। आप जैसे आप देखें माइंड को जहाँ लेके जाना है आपने वैसा ही करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे नहीं तो कोई भी। खुशी हो रही है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। सर खूबी बता दें, फिर खामी तो है ही नहीं। सारी खूबियाँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सब एक खूबियाँ। इंटेलिजेंट है माशाल्लाह, कॉपरेटेड है, बच्चों को जो है ना बहुत अच्छी तरबियत देती है, अच्छी माँ है माशाल्लाह, अच्छी क्या बीवी है। बात, क्या बात है। अच्छा, खामी आपकी तरफ से भी वही जवाब होगा? जी, मेरी तरफ से सबसे पहले तो आई लव यू सो मच नईम साहब, माय डियर हस्बैंड। ये वाकई इनकी आप खामी और खूबी पूछ रहे हैं या मेरी कह रहे हैं कि मेरी जो इन्होंने नहीं, जो मेरे बारे में इन्होंने कहा है, इनके ये नहीं कि इन्होंने ऑन कैमरा कहा है, और इस बात में बिल्कुल सदाकत है कि ये इनके घर में भी, मेरे सामने भी, और मेरे से हट के भी, मतलब किसी से भी अगर ये बात करते तो उनके यही विचार व्यूज़ होते हैं। इनके जज्बात दोनों के यकीनन इस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनको भरपूर एक दूसरे को समझने की तौफीक भी दी है और इनमें मोहब्बत भी है, और अल्लाह करे ये हमेशा कायम और दायम रहे। सर तीसरी शादी आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? नहीं नहीं, रहने दे आप। कोरोना आ गया, एक केसेस इतने बड़े हैं, अभी तीसरी शादी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे। ये वीडियो आपको दिखाने का मकसद ये था कि देखें ऐसी फैमिलीज़ भी, ऐसे लोग भी ग्रीस में मौजूद हैं जो कि बहुत कम सामने आते हैं, और मैं अगेन आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और आपने बताया कि यहाँ पे वेल एजुकेटेड फैमिलीज़ भी हैं, कामयाब लोग भी हैं, और मैंने बहुत लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की है जी। बहुत लोग, कम लोग जो हैं वो टाइम देते हैं। सो अगेन आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। पाकिस्तान पाइंदाबाद।